चलें स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही मेरी? कंफर्म कर दो एक बार। Yes, Ari. ठीक। मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। हाँ, विजिबल है। Yes. ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सुपर कीवर्ड कैसे काम करता है, उसके क्या यूजेस हैं, एंड देन फिर हम मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे फाइनल कीवर्ड की तरफ। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज ओप्स? आकाश, व्हाट इज ओप्स? OOPS stands for Object Oriented Programming Structure और ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो जावा को सपोर्ट करता है, मतलब जावा इसी के ऊपर बेस्ड ठीक है, और कुछ इसके अंदर जो हमें बोलना चाहिए, शायद हमें पता होना चाहिए। है। इसके 4 पिलर्स होते हैं। देखो, एक चीज एक चीज एक इनहेरिटेंस चीज एक या चीज अगर आप लोगों को पता है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता और हल्का हल्का ब्लर ब्लर याद है आपको, तो ट्राई करो ना इंग्लिश में बोलने की। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर कभी हिंदी में पसंद नहीं करेगा सुनना। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कैसे किस तरीके से ये चीज़ें, क्योंकि हिंदी में तो आप बोल रहे हो कंफर्टेबली, पर इंग्लिश में क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को? तो मेरा मतलब यही है, ट्राई करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलो, अब बताओ व्हाट इज ओप्स? so OOPS stands for Object Oriented Programming Structure and it is a concept on which Java is supported upon. And it consists of 4 pillars: inheritance, encapsulation, abstraction, and the other one is polymorphism. ग्रेट, 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 ग्रेट। एंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, अविनाश? अविनाश, आवाज आ रही है आपको? हेलो। Hello, yes, Sachin. हाँ, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? Yes, आवाज आ रही है. हाँ हाँ, बोलो। What is polymorphism? हम्म। Basically, polymorphism is an OOPS concept हम्म। where a single method or object can take multiple forms and हम्म। नाइस टाइम। हम्म। basically it is two type like there is two types of polymorphism like method overloading and method overriding. एंड व्हाट आर दे? Method overriding and method overriding is like work in compile time and method overriding is working in runtime atmosphere. Like ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस टाइम, कैरी ऑन। हम्म। व्हाट अबाउट द समझ नहीं आ रहा क्लास? हाँ हाँ, बोलूं क्या? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता हिंदी में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे, तो कोई इशू नहीं है। मतलब ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात ही है। Yes. आकाश, आप बताओ। Polymorphism is a concept of groups, and by which it means when a program has more than one method of same name, then this phenomena is known as polymorphism. ओके। And there are two types of polymorphism. First one is overloading, and the second one is overriding. ओके। Explain करना है इनको? या। अच्छा. So method overloading is when a program has many methods of same name but have different arguments मेथड within the ओवरलोडिंग program. विद वन And सिंगल method प्रोग्राम। overloading, yeah, and method overloading refers to when there is same method, like there are more than two methods of same name, but
को थोड़ा नहीं पता, इसलिए नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई था। ठीक है। एंड व्हाट इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? आई थिंक बोथ आर सेम। आई मीन नेम, मतलब नाम का डिफरेंस है बस। Yeah, the compile time polymorphism is named as method overloading, and the runtime polymorphism is known as method overriding. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स व्हेन वी हैव अ सिंगल क्लास and in this class we have a multiple method with the same name, but method should be argument should be different. Then we can say method overloading. And about method overriding, when we have two different classes and method same. Okay, when we have two different classes and name of the method same and argument should be same, then we can say method overloading, sorry, riding. Okay. And what is constructor? Okay. Constructor. Uh, when a class has a method named as same as the class name, then it is called as constructor, and uh, it is invoked during the compile time. Okay. And it's work on which variable, global or local? It works on global variable. Local variable. कंस्ट्रक्टर ऑलवेज वर्क ऑन लोकल वेरिएबल। जब भी तो हमने उसको रेफरेंस दिया था दिस कीवर्ड लगा करके, जब मैंने दिस कीवर्ड पढ़ाया था। Got it. ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर? There are two types of constructor: default constructor and parameterized constructor. And what are the difference? The difference between default and parameterized is that parameterized constructor, in parameterized constructor, we pass the value in the parenthesis when we make object of the class. Great, great, great. Okay, and Avinash, what is this keyword? अविनाश, अभी एक्चुअली मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा अभी, हिंदी में बोल लो। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया था बट उसको मैंने अब तक अच्छे से रिवाइज नहीं किया। छुट्टी थी हमारी 3-4, मतलब बीच में भी हमने फ्राइडे से अब तक देखा भी नहीं एक बार भी। नहीं, मैंने मतलब मैं खुद भी कई बार था। छोटी छोटी चीजें यार, इसे इग्नोर मत करो, ठीक है? क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। चलो कोई नहीं, कैचिंग पावर वैसे भी आपकी अच्छी है तो कवर कर ही लोगे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं सुपर कीवर्ड। ठीक है, सुपर कीवर्ड। अगर बात करें सुपर कीवर्ड की, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, दोनों को? यस, इट इज यूज्ड टू, ठीक है, इन्वोक इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट। इमीडिएट पेरेंट मतलब क्या इसमें मल्टीपल पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टीपल क्लासेस वाला आएगा रिलेशनशिप? इमीडिएट पेरेंट मतलब क्या? मतलब सिंगल रिलेशनशिप, सिंगल लेवल रिलेशनशिप, है ना? तो उसमें किस तरीके से हम सुपर कीवर्ड का यूज करके इमीडिएट पेरेंट जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, देखते हैं। और उसके टाइप्स क्या होते हैं ये भी देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि, ठीक है, सुपर कीवर्ड we can apply, ठीक है, इन जावा या फिर कह लो किसी भी लैंग्वेज में, इन 3 ways, ठीक है, इन 3 टाइप्स में कह लो आप। फर्स्ट होता है हमारा
सुपर वेरिएबल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा सुपर मेथड, ठीक है। एंड देन थर्ड होता है हमारा सुपर क्लास, या फिर सुपर क्लास कह रहा हूँ, सुपर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सुपर कंस्ट्रक्टर ये भी आप एक अपने आप में मेथड है। इसका यूज कैसे होता है सुपर कीवर्ड का, वो देखते हैं। अगर पहले बात करूं कि सुपर वेरिएबल, ठीक है, सुपर वेरिएबल, इफ वी हैव सेम नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन चाइल्ड एंड किसमें, पेरेंट क्लास में, ठीक है, देन वी कैन access when we can access parent class variable by which keyword, by using super keyword। क्या इससे पहले हमने दिस कीवर्ड यूज किया था? सुनने में लग रहा दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं? आवाज आ रही है? Yes. बताओ, हमने दिस कीवर्ड यूज किया था, कि दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? हम दिस कीवर्ड का भी यूज करते हैं किस चीज के लिए, जब हमें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंशिएट क्रिएट करना हो, ठीक है, या फिर लोकल वेरिएबल की वैल्यू ग्लोबल में असाइन करनी हो, तो दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है, कहाँ पर, चाइल्ड क्लास, दूसरी क्लास है पेरेंट क्लास, और दोनों में एक ऐसा वेरिएबल है जो सेम हो रहा है। पर मैं क्या चाहता हूँ, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कॉल करना किसमें, चाइल्ड क्लास में, मतलब उसकी वैल्यू को यूज करना। तो मैं किस कीवर्ड का यूज करता हूँ, सुपर कीवर्ड का। किस लेवल पे, वेरिएबल लेवल पे, ठीक है। अगर बात करें सुपर मेथड की, ये इंटरव्यू पूछता है, बहुत पूछता है, सुपर और दिस कीवर्ड ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। इफ वी हैव, ठीक है, इफ वी हैव सेम नेम ऑफ मेथड इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है, देन वी कैन access parent class, then we can access parent class of method, we can access parent class of method by using of super keyword, ठीक है। और अगर बात करें किसकी, सुपर कंस्ट्रक्टर की, अच्छा ये बताओ यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इस टाइम पे, जब तक मैं आगे वाला लिख रहा हूँ, बताओ। ठीक है, और भी कुछ, और भी कुछ, मेथड ओवरराइडिंग, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, दो डिफरेंट क्लास होती है पर मेथड के नेम क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर जब, है ना, मेथड के नेम दोनों के सेम होते हैं,
पर जब हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास, है ना, जब चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो चाइल्ड क्लास क्या करता है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देता है। पर उस कंडीशन में क्या, क्योंकि हम तो सिर्फ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेरेंट का नहीं बना रहे। पर उस कंडीशन में क्या, जब मैं ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का बना रहा हूँ पर मुझे यूज किसकी प्रॉपर्टी करनी है, पेरेंट की, तब तब सुपर कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर कंस्ट्रक्टर की। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करके चलोगे तो आसानी होगी कॉन्सेप्ट को याद करने में। ठीक है, सुपर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इफ वी क्रिएट टू कंस्ट्रक्टर, क्या पॉसिबल है दो कंस्ट्रक्टर बनाना? मे बी डिफॉल्ट और एक पैरामीटराइज्ड हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कंस्ट्रक्टर भी अपने आप में एक मेथड है, याद है? तो क्या पॉसिबल है कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड यस, करना या ओवरलोडिंग करना? हाँ बिल्कुल। क्यों, कैसे जब पॉसिबल? बाकी हो सकता था ये भी हो सकता। क्योंकि ये अपने आप में मेथड है। क्या मेन मेथड को मतलब कर सकते हैं सेम हम? नेम से जब दो मेथड हो सकते। बढ़िया। क्या मेन मेथड को कर सकते हैं? नहीं, मेन मेथड तो एक ही होगा। क्यों? ऐसे लॉजिक तो नहीं, बट मैंने कभी देखा नहीं किसी प्रोग्राम में दो मेन मेथड हो। हाँ, एक प्रोग्राम में एक ही मेन मेथड होता है। मान लो मेरे पास दो क्लास है अलग अलग, तो कंस्ट्रक्टर, कोई नहीं, देन वी, ठीक है, वांट टू, ठीक है, वांट टू access parent class of constructor from the child class, then we use super keyword। बताओ ये वाला लास्ट वाला समझ में आया? देखो पढ़ लेते हैं इसको ना। इफ वी क्रिएट अ टू कंस्ट्रक्टर इन पेरेंट क्लास, मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ा ये गलत हो गया, लिखना मैंने गलत गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इफ वी क्रिएट अ टू कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड इन पेरेंट क्लास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, and then we want to access parent class of constructor from the child class, then we use super keyword। मतलब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हम किसका यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का, क्यों, क्योंकि हमें हमारे पास दो डिफरेंट क्लास है ना। और हमें पता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, कंपाइल टाइम पे, जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। पर जब क्या होगा, जब हमें पता है कि हमारे पास पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जो हमारे डिफरेंट क्लास में है। तो पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर में कैसे वैल्यू डालूँ, उसको कैसे यूज़ करूँ, ये यहाँ पर सुपर कीवर्ड आता है। समझ में आया तीनों में, अविनाश एंड आकाश? ये करने के हमारे बता दो, फिर आगे कंफ्यूजन होगी तो फिर अभी मैं बता दूंगा, अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा अच्छे से। बताओ अविनाश। नहीं सचिन, अभी ठीक है अभी। क्लियर ना? यस यस। ठीक है, चलो यही बोल देना बस यार, आज क्या है ना, थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक मिनट, चलो ठीक है।
1 मिनट है ना, हाँ बस। ओए तेजस, ओए शांत हो थोड़ी देर। अरे मान जा। अरे मान जा यार, नीचे बजा ले जाके। चलो ठीक है, एक लिफ्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का एक को बना लेता हूँ पैकेज। पैकेज का नाम दे दिया मैंने सुपर डेमो, एंड देन इसमें क्लास बनाता हूँ सुपर वेरिएबल डेमो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बनाया और एक नॉर्मल मेथड बनाया। पब्लिक वॉइड दे दिया गेट वेरिएबल। ठीक है, और मेरे पास एक क्लास अलग से है जिसका नाम मैंने दे दिया, आवाज तो आ रही है ना, क्लास सत्य डेमो। Yes. ठीक है, यहाँ पे कितनी क्लास है, इंट एक वैल्यू दे दी मैंने a इक्वल 20 दे दी। ठीक है, और मैंने जो मेरा लोकल वो है, ठीक है, इसमें मैं क्या दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें किसको प्रिंट कर देता हूँ, a को, और एक वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पर इंट a इक्वल 10। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके रिलेशन सत्य डेमो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, पेरेंट का, ठीक है, और मुझे डॉट गेट वेरिएबल, क्या लगता है क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, बताओ। आवाज आ रही है, अगर अभी हम चलाएं इसको तो क्या आउटपुट, Yes. हाँ क्या आउटपुट आना चाहिए, 10. क्यों, क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसी के उसको मतलब मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट के बना मेथड कॉल कर रहे हैं, और उसमें एक हम लॉजिक क्या बनाए कि हमें ए को प्रिंट करना है जो हमारे कहाँ से आ रहा है, बाहर से, जो ग्लोबल वेरिएबल है। रहे। ग्लोबल ही है ना ये, लोकल तो नहीं है, ये तो क्या लग रहा है लोकल है ये, क्लास के उसके अंदर डिफाइंड है, मतलब तो ये लोकल ही होगा ना, ग्लोबल कैसे लोकल नहीं हुआ, ग्लोबल है ये, देखो। नहीं। हाँ ग्लोबल है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक ठीक है, है। ग्लोबल है क्यों, क्योंकि इसे हमने किसी मेथड के अंदर थोड़ी डिफाइन किया है, हमने तो इसको ग्लोबल फिर लगा के डिफाइन किया है। क्लास के अंदर डिफाइंड। मेथड के अंदर अगर डिफाइन करता तो मेरा लोकल है, अगर मेथड से बाहर करता तो ग्लोबल है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस मेथड को कहीं और भी यूज कर सकता हूँ, मतलब इस वेरिएबल को, पर अगर मैं इसको एक मेथड के अंदर डाल दूंगा तो यूज नहीं कर सकता। चलो अभी के लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि किस तरीके से, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो जैसा आप लोगों ने बताया इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। ठीक है, तो हमारा कंपाइलर करूँ, कंसोल ये रहा, एंड देन आउटपुट 10। पर हमारी थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी क्या मतलब डेफिनेशन क्या कहती है सुपर वेरिएबल की, कि हमें क्या चाहिए, इमीडिएट किसका वो चाहिए, इमीडिएट पेरेंट का वेरिएबल जो कि सेम है,
कैसा, जो चाइल्ड क्लास के पास भी है और पेरेंट क्लास के पास भी है। अब जब मुझे पता है कि चाइल्ड क्लास के पास भी सेम वेरिएबल है ए से और पेरेंट के पास भी ए से, तो क्या करूं? क्या मैं दिस कीवर्ड लगा दूं? नहीं लगा सकता दिस कीवर्ड, ठीक है, सुपर क्योंकि कीवर्ड। हाँ, क्योंकि दिस कीवर्ड सेम क्लास में होता है, ये सुपर कीवर्ड है। अब सुपर कीवर्ड वेरिएबल के लेवल पे मैं कहाँ अप्लाई करना पड़ता है? जहां पर हम उसको यूज कर रहे थे, सुपर डॉट। ये मैंने सुपर डॉट यूज किया। अगर अब मैं रन कर रहा हूं तो अब देखो क्या आ गया, दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, सुपर वेरिएबल। अब ये 10 नहीं आएगा। अब चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी कर लो, 30 कर लो, ठीक है, 30 ही आएगा, क्योंकि हमने किसको रेफरेंस दे दिया? पेरेंट क्लास के वेरिएबल को रेफरेंस दिया है, जो कि सेम है एज इट इज चाइल्ड क्लास वाले की तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा सुपर वेरिएबल। अब बात करते हैं किसकी? सुपर मेथड की। इसी को बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सुपर मेथड में मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम नेम से मेथड होना चाहिए। तो ये लो, ये क्या है? ठीक है, और इसको हटा करके ये, अभी मैं क्या मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है मेथड, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से हैं? एक मिनट देना मुझे, हाँ? एक मिनट देना। चलो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं अभी कॉल करता हूँ तो क्या आना चाहिए? ट्राई करते हैं। रिलेशन दोनों में बना हुआ है, क्योंकि दोनों कौन से हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वेरिएबल कंसोल। कौन आया पहले? आवाज नहीं आ रही। पहले पेरेंट क्लास का मतलब कंसर्न वो हुआ पहले, और फिर एक मिनट, ये जो अभी कॉन्सेप्ट है ना, ये है सुपर कंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है। सुपर मैथड का बताना था, चलो सुपर कंस्ट्रक्टर बताता हूँ पहले, ठीक है। सुपर कंस्ट्रक्टर हमें पता है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अभी सुपर मेथड देखते हैं। सुपर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो हमें इसमें पता है कि जब पेरेंट क्लास के पास कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? पैरामीटराइज, ठीक है। और हमें ये पता है कि जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है किसके पास? पेरेंट क्लास के पास। तो जैसे हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? चाइल्ड का। तो क्या पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर किसके पास? चाइल्ड के पास है, कि उसको पैरामीटर भेज पाएंगे हम? देखो, इसको बनाते हैं इंट ए,
ठीक है, देखो एरर आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है यहाँ पर, बताओ। चाइल्ड का चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, और हमें किसको पैरामीटर देना है, पेरेंट को। इसको कर देता हूँ कॉन्केटनेट विद ए, ठीक है, और किसको पैरामीटर देना हमें, पेरेंट को। तो अब कैसे देंगे, क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा है कंस्ट्रक्टर के केस में कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर भेजने का एक तरीका ये है कि उसको क्या कर दो, कॉल कर दो, उसकी क्लास का वो बना लो ऑब्जेक्ट, देन उसको वहाँ पे जो क्लास है उसमें क्या कर दो, पैरामीटराइज कर दो, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी जो पैरामीटर हमने वहाँ पे एंटर किया हुआ है। और यहाँ पर कैसे करें, और ये एरर भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने किसको वो किया हुआ है इनहेरिट, जिसके अंदर पैरामीटराइज किया हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमें किस में वैल्यू भेजनी है, पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज में। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास सुपर कीवर्ड होता है, और ये बोल भी रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिखा है इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर सत्या डेमो इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो उसमें अगर वैल्यू भेजनी है तो क्या लगाओगे आप, जो हमारा कौन सा है चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसमें आप लिखोगे सुपर, ठीक है, और उसमें यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर भेज सकते हो। जैसे मैं भेज देता हूँ यहाँ से 78 भेज रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब कॉल करता हूँ तो अब बताओ क्या आएगा, देखो अब कॉल कर रहा हूँ तो ये रहा हमारा सो व्यू कंसोल, भेज दिया, दिख रहा है 78। तो इस तरीके से हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कब, जब हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस में कंस्ट्रक्टर हो और हमें पेरेंट क्लास के किस में कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजनी है, अगर वो पैरामीटराइज है तो कैसे भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनता है, चाइल्ड क्लास का। और जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें पता है कि वो क्या मांगता है, वैल्यू, कौन, पेरेंट क्लास। तो उसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में क्या लिखेंगे, सुपर, एंड देन उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू चाहिए किसके अंदर, पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है उसके अंदर, वहां से हम उसको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। बताओ इसमें कोई डाउट है सुपर कंस्ट्रक्टर में, नो अविनाश आपको नो सेशन क्लियर है ना, क्योंकि पूछता है यस वो यस वो आपसे डाउट पता है कैसे क्या पूछेगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सुपर कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो तीनों में पूछेगा। आपने बता दिया क्या कहते हैं, पैरामीटराइज और डिफॉल्ट, ठीक है, फिर वो बोलेगा कि सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करे, उसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन करे, तो वहां पे सुपर कीवर्ड का यूज होता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर। अब देख लेते हैं डेमो, डेमो कह रहा हूँ मेथड, सुपर मेथड। अब सुपर मेथड में पता है कि कौन सा वो होता है, उस कॉन्सेप्ट अप्लाई, हटा दो उसको, ये डिफरेंट क्लास बनाऊं, डिफरेंट बना लेता हूँ यार, सुपर मेथड डेमो। अगर गलती से क्लास का नाम मिस टाइप हो जाए ना तो आपके पास दो तरीके हैं उसको ठीक करने के। आप क्या करोगे, क्लास पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, लिखा है ना रिफैक्टर करके, देखो कहाँ पर है, ये रहा रिफैक्टर, यहाँ पे आ गया रीनेम, आप चेंज कर सकते हो। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो आपकी क्लास है उसी के अंदर चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, सुपर मेथड्स आ गया, एस में को हटाना है, एस हटाया, अब इसने एरर दिया, इस पर फिर माउस ओवर करोगे तो ये देखो आ गया आपके पास, इस पर क्लिक कर दो, सुपर चेंज, जहाँ पे क्लास बनी हुई है वहाँ पे भी चेंज, और हमारी जो क्लास है वहाँ पे भी चेंज, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, सुपर मेथड। अब सुपर मेथड में क्या बोला हुआ है कि जब हमारे पास क्या हो, दो डिफरेंट क्लास हो और दोनों मेथड क्या हो, सेम हो,
अभी सुपर मेथड को भूलो, नॉर्मल जब हम ओवरराइडिंग देखते हैं तो क्या होता है उस केस में, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड का, कौन किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा होता है? चाइल्ड पेरेंट की। चाइल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा, क्योंकि दोनों मेथड क्या सेम है। पर यहाँ पे क्या, अगर मैं चाहता हूँ पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना, बल्कि बना किसका ऑब्जेक्ट रहा हूँ मैं, चाइल्ड का। अब पेरेंट की प्रॉपर्टी में कुछ भी रखा हो, कोई भी लॉजिक हो, चलेगा किसका, पेरेंट का। तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है, उसमें देखते हैं। बताओ अभी समझ में आया, करने का जा रहे हैं, बोलो। Yes. Yes. ठीक है, चलो, ये बनाया मैंने एक क्लास, इसके अंदर दे दिया मैंने मेन मेथड, ठीक है। एक मैंने दिया इसके अंदर पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ठीक है। एंड देन इसमें मैंने डाल दिया लॉजिक हेलो फ्रॉम दी सुपर मेथड क्लास, ठीक है। और मैंने एक क्लास बनाई कहाँ पर, अलग से, एंड देन इसका नाम दे दिया रामवती डेमो, ठीक है। और इसके अंदर क्या मेथड पास करोगे, सेम हो जाए, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैंने लॉजिक दिया हेलो फ्रॉम दी रामवती डेमो, रामवती डेमो क्लास। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कौन सा लॉजिक आएगा पहले, क्या चलेगा, या मुझे कुछ और करने की जरूरत है अभी यहाँ पर, बताओ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आपने वो इनहेरिट इनहेरिट नहीं किया हाँ, उसको। क्योंकि रिलेशन हमारा जरूरी होना चाहिए इनके बीच में, तभी हम कर पाएंगे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल, ठीक है, यूज कर पाएंगे। तो रिलेशन बनाया, हमें इमीडिएट पेरेंट की वो चाहिए प्रॉपर्टी। तो अब अगर मैं यहाँ बनाता हूँ किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट एंड देन गेट डेटा, बताओ क्या आएगा, कौन सा चलना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने इनहेरिटेंस में क्या देखा, सिंगल लेवल में, क्योंकि दोनों के डिफरेंट नाम होते हैं दोनों क्लासेस में, ठीक है। तभी हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर पाते हैं, मतलब मेथड को ओबीजे के थ्रू, ठीक है। पर यहाँ पर तो मेथड का नाम ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइम हमने सेम नाम से मेथड बनाया पर ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। अगर मैं अब ऑब्जेक्ट एक बना रहा हूँ तो किसकी प्रॉपर्टी कॉल होगी यहाँ पर, बताओ। पेरेंट पेरेंट क्यों, पेरेंट की प्रॉपर्टी। पेरेंट की क्यों होगी, क्या, बाय डिफॉल्ट एक चाइल्ड ही तो पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। कर तो सकता है, पर हमने कॉल थोड़ी ना किया है। इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा था, हम उसको कॉल कर रहे थे अलग से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, पर ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहे थे, मतलब ये है कि राइट किसका पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, चाइल्ड का। पर राइट को यूज करने का एक तरीका भी तो होता है। हमने इंटरनेट में क्या देखा था, राइट तो बेसिक चाइल्ड का है, पर उसको यूज करने का तरीका क्या है, ओबीजे ऑब्जेक्ट बना करके उसको मेथड का, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी में है। पर यहाँ पर तो दोनों ही सेम मेथड है ना, मैं ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, चाइल्ड का, क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और कॉल किसको कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों मेथड सेम है। तो क्या आना चाहिए अगर रन करता हूँ तो, देखो, राइट क्लिक, जावा रन किया, देखो क्या आया,
कन्फ्यूजन है तो ये देखो इनहेरिटेंस वाला सिंगल लेवल मैंने बनाया हुआ, ये रहा, देखो यहाँ पर जो ये क्लास है ना, जिस क्लास में जो लॉजिक है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें रन करना पड़ेगा ओबीजे करके, जो मेथड वहाँ पे रखा हुआ है। और ये कहाँ है देखते हैं, इस पे किया माउस ओवर, ये रहा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट वहाँ बनाऊंगा ना तभी ये लॉजिक होगा रन। पर यहाँ पर तो दोनों का नाम ही सेम है, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर तो दोनों का नाम ही सेम है, समझ में आया। अब कैसे करूँ प्रॉपर्टी चाहे उसकी कॉल पेरेंट की, तो यहाँ पर आता है हमारा कौन सा, सुपर कीवर्ड। और सुपर कीवर्ड कैसे अप्लाई करते हैं, जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है, मतलब जो उसका मेथड है, उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें अप्लाई करोगे सुपर डॉट। जैसे सुपर डॉट करोगे देखो आ गया ऑब्जेक्ट, और उसके आगे क्लास भी आ गई, ठीक है। देन इसको कर दो कॉल, अब करो सेव एंड देन रन, देखो हो गया। अब बताओ कोई डाउट है यहाँ तक, आकाश, अविनाश। इस क्लास को दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के साथ। दोबारा अभी कोई डाउट है तो बताओ, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, गो थ्रू कर लेना, कोई इशू अभी नहीं है। हाँ, तो ऐसे कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी रिवीजन के लिए ना, ताकि दिमाग में फीड हो जाए। हाँ ये भी है, आइडिया तो होना चाहिए, यस। समझता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा सुपर। अब बात करते हैं किसकी, फाइनल की, कि फाइनल कैसे यूज होता है। चलो फाइनल देखते हैं, बस एक मिनट। इसी में लिखवा देता हूँ, पहले इसको वहाँ पे रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ पेज को ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो इन कर लेता हूँ फाइनल कीवर्ड, ठीक है। फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड क्या करता है हमें, कि ये मैं ना किसी चीज़ को ना, कोई भी चीज़ जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सेम ये जैसे सुपर है, सुपर वेरिएबल, ठीक है, सुपर मेथड, सुपर जैसे सॉरी सुपर जैसे हमने अप्लाई किया ना, सुपर वेरिएबल, सुपर मेथड, सुपर कंस्ट्रक्टर, सेम वैसे फाइनल को भी सुपर फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड एंड देन फाइनल क्लास। पर इसमें एक चेंज है, चेंज क्या है, जब हम किसी क्लास को फाइनल करते हैं उसको हम क्या नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मैं कल कराऊंगा, अभी ओवर दे देता हूँ। जब भी कोई फाइनल क्लास हमने बनाई है उसको हम क्या नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते। फाइनल का मतलब होता है हमने जो कीवर्ड वहाँ पे लगाया है ना किसी क्लास के साथ, उसका मतलब वो है कि उस क्लास में जो भी चीज़ रखी हुई है वो एक तरीके से फाइनल हो गई है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी रिसेंट में, मतलब अगर जो सोसाइटी में एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा फाइनल किया जाता है, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सन 2019 में जम्मू कश्मीर से एक स्पेशल आर्टिकल रिमूव किया था। याद है कोई आर्टिकल जो रिमूव किया था, बताओ। नो। आर्टिकल 370 करके एक आर्टिकल था, उसको रिमूव किया था। उस आर्टिकल में क्या था, स्पेशल राइट्स थे वहाँ के लोगों के लिए, कुछ होगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है। पर जब उसको रिमूव किया गया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसको इस तरीके से रिमूव किया गया, उसको इस तरीके से रिमूव किया गया कि वो ना फाइनल हो गया। तो गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उसको ना हमने इस तरीके से हटाया है, अगर कोई कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट आती भी है तो वो उसको वापस नहीं ला सकती, वो हमारा फाइनल डिसीजन है। जिस तरीके से हमने उसको रिमूव किया वो फाइनल है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो सेम यही फाइनल जिसको हमने एक बार कर दिया,
उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करते हो और कहीं और यूज़ कर रहे हो तो वही फाइनल हो जाएगा, कहीं और से उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर इन बिटवीन आप उसी क्लास के अंदर जा कर के जहाँ पर आपने फाइनल उसको डिफाइन किया वहीं चेंज कर रहे हो तो ठीक है, पर कहीं और उसको यूज़ कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते उसको चेंज। ठीक है, ऐसी क्या है, सुपर वेरिएबल है। अब सुपर वेरिएबल में क्या है, जो आपने एक बार डिफाइन कर दी वैल्यू, ठीक है, जो आपने एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी सुपर के साथ, सुपर कह रहा हूँ फाइनल के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर मेरे पास सेम नाम से दो वेरिएबल भी है ना और मैंने एक को कर दिया फाइनल, तो उसकी वैल्यू हमेशा जहाँ भी उसको यूज़ की जाएगी वो सेम रहेगी। ठीक है, चाहे आप किसी क्लास में यूज़ करो, किसी मेथड में यूज़ करो या फिर कहीं भी और यूज़ करो, इनहेरिट करके यूज़ करो तब भी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ऐसी मेथड है, जिसको आपने एक बार फाइनल कर दिया वो फाइनल ही रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते आप। ये फ्रेमवर्क लेवल पे ज़्यादा अप्लाई होता है कीवर्ड। ठीक है, इसको कल देखेंगे अच्छे से। अभी के लिए सुपर कीवर्ड है, इसको ज़रा एक बार देखना अपने से। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, और फाइनल कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग लेके आना, फिर कल आगे पढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड, एंड देन फिर आगे मूव कर जाएंगे अदर्स में, कॉन्सेप्ट में। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? सचिन आप ये जो नोट्स है ये सेंड कर देंगे? हाँ, अभी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है आकाश, ठीक है विनाश, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, गुड नाइट।